The lights you spread, the paths you show, guide us in ways only you know. It is with great respect and enthusiasm that we invite our today's chief guest. Their words are sure to enlighten and motivate us. So, let's put our hands together and warmly welcome our chief guest, Dr. Bharat Rawat. Sir, we are honored by your presence today. We kindly request you to inspire us by your valuable words. Please, sir. Dr. Bharat Rawat is Associate Director Cardiology and a Lifestyle Guide at Medanta Hospital, Indore. He did his MD in 1994 and DM in Cardiology in year 1998. He then joined Escorts Heart Institute and Research Center, New Delhi. He also took training sessions at Stanford Hospital, USA, MT Elizabeth Hospital, Singapore, Soroka Medical Center, Israel, and Second Red Cross Hospital, Kyoto, Japan. Dr. Rawat has a special interest in promoting healthier lifestyle for prevention of heart diseases. He has written more than 1,000 health-related articles in various magazines and has given numerous health talks and given a TED Talk on balance sheet of life. Dr. Rawat was deputed as Executive Director and Head of Cardiology Department at Norvik International Hospital, Kathmandu, Nepal in 1998. He had a hugely successful professional and social career in Nepal. He has to his credit many scientific papers presented in various national and international conferences. Dr. Rawat has also authored a popular book on healthier lifestyle for healthier heart, which is available in Hindi, English and Nepali languages. His another book is recently released. It is Dil Se Dil Tak, True Stories of 52 Heart Patients. Last year, Dr. Rawat started Indore Heart Club with an aim to provide simple tips to keep heart healthy. IHC is open and free for all and has now more than 10,000 members. Dr. Rawat is himself into fitness, a marathoner and nature lover. He believes that a simple living can keep our hearts healthy and happy. It's a great pride to have him as a chief guest amongst us. Thank you so much. This is an absolute honor to be here today evening, and I am so delighted that the little children have performed so well, and I am sure that आप सब लोगों को भी उतना ही आनंद आया, और जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, मुझे यकीन है कि उन्हें विश्वास नहीं था कि उनके बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं. आइए इन बच्चों के लिए खूब ताली बजाएं एक बार. ये आपके बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये देश के बच्चे हैं, ये समाज के बच्चे हैं. और मैं इतना खुश हूँ कि आज छाजेड़ फैमिली के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके इन प्रयासों के और उनके बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से ये स्कूल ने इतनी तरक्की करी है. मैं आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. मैं आज आपके सामने कुछ टिप्स लेकर आया हूँ, और मैं चाहता हूँ ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और इनके जो टीचर्स हैं और आप जो पेरेंट्स हैं, शायद इन बातों से कुछ सीख पाएँ. सबसे पहले मैं आपसे एज ए डॉक्टर बात करना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को लगता है आपका स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपका हेल्थ आपके लिए महत्वपूर्ण है. वेरी नाइस. तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है. आप में से कितने लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है? आप में से कितने लोगों को डायबिटीज है? देखिए, मेरे को उनकी चिंता नहीं है जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं. मुझे उनकी चिंता है जिनका बीपी और शुगर बढ़ा हुआ है लेकिन हाथ दोनों नीचे हैं. क्योंकि बहुत सारे लोग अपना जांच नहीं कराते हैं. मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बड़ी बड़ी जांचें मत कराओ, आप फुल बॉडी चेकअप मत कराओ, लेकिन मेहरबानी करके अपना बीपी और शुगर की जांच कराएं. जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने पेरेंट्स को कहें कि मेहरबानी करके अपना बीपी और शुगर साल में 2-3 बार तो जांच कर लिया करो. तो ये एक बहुत बेसिक बात है कि आपको अपना बेसिक जांच पता होना चाहिए.
और कई बार मेरे को लगता है कि आपके स्वास्थ्य में प्रगति हो रही है या दुर्गति हो रही है, ये आपके डॉक्टर से ज़्यादा आपके दर्जी को पता होता है, क्योंकि वो पेट का घेरा देख रहा होता है। तो पेट का घेरा मतलब दर्जी की टेप, उससे भी पता पड़ जाता है कि आपके स्वास्थ्य में प्रगति हो रही है कि दुर्गति हो रही है। आपको बड़ी भारी जांचें करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आप ये देखो कि खाने पीने की बातें, मैं थोड़ा सा नीचे आके भी बात करता हूं आपसे। आप में से कितने लोग खाने के लिए जी रहे हैं और कितने जीने के लिए खा रहे हैं? खाने के लिए कौन जी रहा है? हाँ जी, जीने के लिए खा रहे हैं कि खाने के लिए जी रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, अभी है ना विनीत छाजेड़ साहब ने बाहर 2 टेबलें लगा रखी हैं, एक में 500 समोसे रखे हैं, एक में 500 एप्पल रखे हैं। पहले क्या खत्म होने वाले? खाने के लिए जी रहा हूं कि जीने के लिए खा रहा हूं? तो आपको ये सोचना है कि भैया जो मिल जाए वही खा जाओ, ये ठीक नहीं है। ये आपके डॉक्टर के लिए अच्छा है, आपके अस्पतालों के लिए अच्छा है, आपके लिए नहीं अच्छा है। मैं जिनका भी हार्ट का ऑपरेशन करता हूं, हर व्यक्ति ये पूछता है क्या खाएं क्या ना खाएं। तो अब मैं आपको बहुत संक्षेप में टिप्स देता हूं। पहली बात यह है कि शाम का खाना 7 बजे खा लो। अब देखो 7 तो बज गई आज की, तो अब कल खाएंगे। दूसरा यह है कि बाहर का मत खाइए, घर का बना हुआ खाइए। और तीसरा यह है कि जितना हो सके आप तेल का उपयोग कम करें, या कच्ची घानी का तेल लें, मूंगफली का, तिल का या सरसों का। बाहर के बने आइटम ना खाएं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, खाने का सामान खेत से मंगाएं, किचन में उसे पचाने योग्य बनाएं। फैक्ट्री का सामान घर ना आए, घर का बना हुआ चाव से खाएं। यही है यूनिवर्सल डाइट, जो कि है सबके लिए राइट। आप में से किसी की बर्थडे है आज? आज किसी की बर्थडे है बच्चे की? कल है किसी की बर्थडे? क्या होता है बर्थडे में? हाँ बिटिया रानी, आपकी बर्थडे कब आती है? देखो अभी 2 महीने पहले इनकी बर्थडे गई है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। फिर क्या होता है उसके बाद? केक खिलाओ, हमारे हाथ से भी खाओ, हमारे हाथ से भी खाओ, हमारे हाथ से भी खाओ। किसी ने आज तक हाथ धो के केक खिलाए? हाथ धो के केक खिलाए किसी ने? बर्थडे पे केक खिला खिला के 2-4 दिन कम कर दिया उसके आपने हैप्पी बर्थडे पे। अरे बर्थडे पे केक की जगह घर का बना हुआ हलवा ला सकते थे, मोमबत्ती बुझाने की बजाय दिया लगा सकते थे। यह भी तरीका हो सकता है बर्थडे बनाने का। नमस्कार भाई साहब, शादी हो गई आपकी? हैं? तभी इतने खुश दिख रहे हो। आज तक कभी आपको साली ने कभी अपने हाथ से ककड़ी खिलाई है? जिया जी मेरे हाथ से ककड़ी खा लो, मेरे हाथ से सूप पी लो। नहीं जिया जी मेरे हाथ से तो एक बाफला तो और खा ही लो आज। नहीं एक और बाफला। अरे तुम्हारे जिया जी खुद ही बाफले जैसे हो गए, कितने बाफले खिलाओगे उनको? मैडम आपने अपने जवाई साहब को कभी कहा कि मेरे हाथ से लड्डू खा लो? अरे आपने अपनी बहन दी है, आपने अपनी बेटी दी है, उसको खिला खिला कर जवाई साहब को, अपने जिया जी को मारने का प्रयास क्यों करते हो आप लोग? तो ये प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, ये अज्ञानता है। जो यहाँ महिलाएं बैठी है ना, मैं सबसे कहना चाहता हूँ पीछे मत पड़ो, और अगर पीछे पड़ के खिलाना है तो ककड़ी खिलाओ, फ्रूट्स खिलाओ, सलाद खिलाओ, अपने हाथ का बना हुआ सूप पिलाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब बात करते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य की। एक बार जोर से हंस के दिखाओ तो जोर से हंस के दिखाइए, दोनों हाथ ऊंचे करके। वेरी नाइस। सबका भला हो, बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। तो ये चीज जब आपके मन में आ जाए कि सबका भला हो, और जो बच्चे बैठे यहाँ पे मेरे साथ बोलिए, गलत काम करूंगी नहीं, फिर किसी से डरूंगी नहीं। वापस, गलत काम करूंगी नहीं, फिर किसी से डरेंगे नहीं। तो जब आप डरेंगे नहीं ना, तो आप बहुत सारी मुसीबतों से बचेंगे और अच्छी नींद सोएंगे। और अच्छी नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।
और जिनको तेज खर्राटे आते हैं वो अच्छी नींद का इंडिकेटर नहीं है। अगर आपके पिताजी को, अगर आपके भाई को, आपके हस्बैंड को तेज खर्राटे आते हैं तो उनका चेकअप कराइए। खर्राटों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और स्ट्रोक आने का रिस्क होता है, लकवा हो जाता है। तो खर्राटे अच्छी नींद का द्योतक नहीं है। ये कुछ ऐसे सिंपल टिप्स हैं जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे खराब कामों से बच पाए, मतलब बीमारियों से बच पाएंगे। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे दो चीज़ें और पूछना चाहता हूँ। एक है कि आजकल आप क्या पढ़ रहे हो। अभी आपने एक स्किट देखा बच्चों, है ना, उसने कहा किताबें पढ़िए। तो कुछ ना कुछ पुस्तकें पढ़ना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको कहूँगा एटॉमिक हैबिट्स और पावर ऑफ नाउ, ये दो पुस्तकें। अगर आप, किसी को पता है पावर ऑफ नाउ किसने लिखी है? एटॉमिक हैबिट्स किसने लिखा है? हाँ जी, एटॉमिक हैबिट्स के राइटर कौन है? जेम्स क्लियर। और पावर ऑफ नाउ लिखा है एकार्ट टोले ने। ये दोनों पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उन्हें पढ़ें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पढ़ना चाहिए। एक मेरा प्रश्न आपसे एक और है कि रात को कितनी बजे आप सोते हो, ये आपकी लाइफ का डिसिप्लिन है। आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें कि क्या पिछले रात को सोने से पहले का 1 घंटा मेरे जीवन के किसी बड़े उद्देश्य की तरफ था? मतलब आपने सोने से पहले जो 1 घंटा कार्य किया, उससे आपके जीवन के बड़े उद्देश्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? यह आपके जीवन को बहुत अच्छी तरह से डिसाइड करेगा कि आप कहाँ पहुँचने वाले हो। तो सोने से पहले आपने 1 घंटा जो भी कार्य किया है उसका आप ध्यान रखें। इसका मतलब यह है कि संक्षेप में कहें तो मोबाइल को जल्दी से साइड में रखें। सीधी बात यह है। अगर आप अपने मोबाइल को बहुत देर तक काम में रहते हो तो विश्वास करो आप खुद बहुत देर तक मोबाइल नहीं रहोगे, फिर खटिया पकड़ लोगे जल्दी। तो अगर आपको मोबाइल रहना है तो इस मोबाइल का उपयोग या दुरुपयोग ना करें ज़्यादा। अंत में मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों में से किसी ने इंदौर हार्ट क्लब सुना है? इंदौर हार्ट क्लब आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपने ज्वाइन किया है? चलिए आपके लिए तालियां बजाई जाए। मैं सोच रहा था कि इंदौर हार्ट क्लब किसने ज्वाइन किया होगा। इसमें से एक किताब भी दे देना। क्या नाम है आपका? अजय जी के लिए तालियां बजाएं। आइए इधर आ जाइए, भाई साहब के हाथ से लीजिए। आपसे मेरा निवेदन है कि इंदौर हार्ट क्लब आपने ज्वाइन किया हुआ है? ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं प्रिंसिपल साहब से निवेदन करता हूं कि आप खुद ही वेरी नाइस। दोस्तों, हमने पिछले साल इंदौर हार्ट क्लब खोला है। दिल के नुस्खे हर हफ्ते हल्के फुल्के, दिल के नुस्खे हर हफ्ते हल्के फुल्के। तो अगर आप लोग आवश्यकता से कम और अधिक उपचार से बचना चाहते हैं तो इंदौर हार्ट क्लब ज्वाइन कर लें। उसके लिए बहुत आसान तरीका है। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दें IHC, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। वो आप लिंक दूसरों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग सिंपल बातें मान लें तो विश्वास करें आधे अस्पताल बंद हो जाएं। हम सबको चाहिए कि मेडिकल इंडस्ट्री को थोड़ा डाउन करें। आप लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है अस्पताल चलाने का। यार हम चलाएंगे अस्पताल, ऐसे मत करो। दूसरी इंडस्ट्री चलाओ, अस्पतालें मत चलाओ। तो इंदौर हार्ट क्लब ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप, मेरा नंबर नोट कर सकते हो आप, पर फोन मत करना मेहरबानी करके, व्हाट्सएप करना 9717783168। आई रिपीट 9717783168। सिर्फ एक मैसेज कर दें IHC या इंदौर हार्ट क्लब, मैं लिंक भेज दूंगा और वो लिंक आप दूसरों को भेज सकते हो। मैं प्रिंसिपल साहब को ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ है, तो ये सबको फॉरवर्ड कर सकते हैं। इंदौर हार्ट क्लब ज्वाइन कर लीजिए। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक प्रार्थना जो आप याद कर लो, आपको बहुत मदद करेगी। 3 चीज़ें मांगिए। पहला, हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे कि जिन चीज़ों को मुझे बदलना है मैं बदल सकूं। हे प्रभु मुझे इतनी सहन शक्ति भी दो
कि जिन चीज़ों को नहीं बदल सकता हूँ उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लूँ। और हे प्रभु, मुझे इतनी बुद्धि दो कि ये तय कर सकूं कि किसे बदलूं और किसे स्वीकार करूं। आप सब लोग स्वागत करें। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Your presence adds a great honor and joy to our event. Rightly quoted, gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Now, this is the time to express our hearty thankfulness to the one who has made a significant impact on this journey. I kindly request all the dignitaries to please honor Dr. Bharat Rawat for spending his valuable time to motivate and encourage us. Please accept this humble memento as a token of love, reflecting our deepest thanks and memories of this occasion. Sir, we feel a great honor as you spend your valuable time with us. Thank you, sir.